Pakistan's consistent efforts in the diplomatic domain have played a significant role in invoking the recent peace initiative in Gaza. We hope it leads to enduring peace and stability in the region. Pakistan stands by its principled stance on the indispensability of the two-state solution and the need for an independent, sovereign and viable state of Palestine based on pre-1967 war borders with Al-Quds Sharif as its capital. Pakistan remains steadfast in its principled stance on Kashmir and will continue to extend political, diplomatic and moral support to the legitimate Kashmiri freedom struggle. القدس شریف فلسطین کا دارالحکومت ہوگا. فلسطین پر اصولی موقف پر قائم ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے واضح کر دیا. کہا غزہ میں ہزاروں فلسطینی شہید ہوئے. غزہ پر مسلسل سفارتی کوششیں کی. غزہ امن میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا. امید ہے سیز فائر، امداد اور تعمیر نو جاری رہے گی. سید عاصم منیر کا پی ایم اے کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب. امریکہ کے ساتھ تعلقات میں پیش رفت کو خوشائند قرار دیا. کہا متنازع علاقوں میں امریکی صدر کی قیام امن کی کوشش قابل تعریف ہے. Energization of strong and growing relations with the United States of America is an encouraging and welcome development. President Trump's personal efforts and strategic leadership to bring peace to multiple conflict-prone areas of the world are really praiseworthy. Most significantly, we stand proud of our historic and all-weather strategic cooperative partnership with People's Republic of China. We will further nurture these relations with key global and regional players for the interest of peace, security and development. Let me assure the nation that with the help and mercies of Allah Almighty and support of people, we will not lose an inch of this sacred land. Should a fresh wave of hostilities be triggered, Pakistan would respond much beyond the expectations of the initiators. With diminishing distinction between combat and communication zones, the reach and lethality of our weapon systems will shatter the misconceived immunity of India's geographic vastness. The deeply hurting retributive military and economic losses inflicted will be much beyond the imagination and calculations of the perpetrators of chaos and instability. I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. دشمن کی ہر جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے. بھارت کا حفاظتی تصور ختم کر دیں گے. نقصانات بھارت کی توقعات سے کئی زیادہ ہوں گے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بھارتی فوجی قیادت کو خبردار کر دیا. کہتے ہیں پہلے بھی بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دیا. رافیل دفاعی نظام اور کئی بیسز کو نشانہ بنایا. دوبارہ جارحیت پر کئی زیادہ سخت جواب دیں گے. نئی کشیدگی کے تباہ کن نتائج کا ذمہ دار صرف بھارت ہوگا. مقدس سرزمین کا ایک انچ بھی دشمن کے حوالے نہیں ہونے دیں گے. Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. Having failed in its belligerence against Pakistan in Operation Marka-e-Haq, India continues with state-sponsored terrorism as a preferred policy. Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khawarij as hired guns exposes its cowering, hypocritical and heinous face to the world. Equally disconcerting is the use of Afghan soil for terrorism in Pakistan. We urge the people of Afghanistan to choose mutual security over perpetual violence and progress over hardline obscurantism. دشمن کی ہر پراکسی کو خاک میں ملا دیں گے. طالبان ریجیم پراکسیوں کو لگام ڈالے. افغانستان میں فتنہ الہندوستان اور خوارج کی پناہ گاہیں ہیں. یہ فتنے دشمن کے کرائے کے قاتل ہیں. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دو ٹوک پیغام. کہا اسلام کی غلط تشریح کرنے والے دہشت گردوں کے سامنے نہیں جھکیں گے. نوجوان ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کا حصہ نہ بنے. دشمن قوم اور افواج میں دوری چاہتا ہے. اندرونی و بیرونی دشمنوں کو ہرائیں گے. Recent strategic mutual defense agreement with Kingdom of Saudi Arabia is a reinforcement and formalization of Pakistan-Saudi brotherhood
and a step towards ensuring peace and stability in the Middle East and South Asia. For people and armed forces of Pakistan, it's a moment of unique pride to reaffirm our faithful commitment to defense of Haramain Sharifain. पाक सऊदिया दिफाई मुआहदा भाईचारे को तक़वियत देता है। हरमैन शरीफैन के दिफा के लिए अपनी खिदमात पेश कर रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का PMA की पासिंग आउट परेड से तारीखी और गैर मुबहम खिताब। बोले अवाम और मुसल्लह अफवाज के लिए यह मुनफरिद एजाज़ है। यह मुआहदा मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम यकीनी बनाने की जानिब कदम है। तमाम मुस्लिम ममालिक के साथ ताल्लुकात फ़रोग़ पा रहे हैं। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काहूल में पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब। इराक, मालदीव, यमन, फ़लस्तीन और मुख्तलिफ दोस्त ममालिक के 40 कैडेट्स की शिरकत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने परेड का मुआयना किया। फील्ड मार्शल ने बाबर कंपनी को कायद आज़म अवार्ड से नवाजा। एजाज़ी शमशीर अहमद मुश्तबा आरिफ राजा ने हासिल की। सदर पाकिस्तान का गोल्ड मेडल ज़ुहैर हुसैन ने हासिल किया। पासिंग आउट तकरीब में नौजवान कैडेट्स का मार्च पास्ट का शानदार मुजाहिरा। अभी चंद महीने पहले जो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अजीम फतह से नवाजा, हिंदुस्तान के मुकाबले में जो 4 दिन की जो जंग थी, जिस तरीके से अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को फातेह करार दिया और फतह नसीब की, ये उस मालिक का करम। अफवाज पाकिस्तान की दलेराना और जो जरी जवान अफसर हैं और एयर फोर्स हो हमारी, चाहे वो बरी अफवाज हो, चाहे हमारे वो बहरी अफवाज हो, इन सब ने मिलकर एक तारीख रकम की। आसिम मुनीर उन्होंने फ्रंट से लीड किया और मैं जानता हूँ कि मैं एक एक लम्हे से वाकिफ हूँ। सऊदी अरब के साथ हमारा जो डिफेंस पैक्ट हुआ है और सऊदी अरब ने पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के भाइयों बहनों के लिए जो मोहब्बत के फूल निछावर किए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मार्का हक में फ्रंट से लीड किया। अवाम और अफवाज पाकिस्तान की वजह से भारत के खिलाफ फतह मुमकिन हुई। भारत क़यामत तक इस शिकस्त से बाहर नहीं निकल सकेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जहानिया में सियासी रहनुमाओं से गुफ्तगू। बोले गजा जंग बंदी के लिए पाकिस्तान ने कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने मुआशी इस्तेहकाम और सिफारती कामयाबियों की नई मिसाल कायम की। सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात में नई गर्मजोशी पैदा हुई। पाक अफगान वफूद के दरमियान दोहा में मुज़ाकरात जारी। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कर रहे हैं। पाकिस्तानी सिक्योरिटी हुक्काम वज़ीर दिफ़ा की मुआवनत के लिए मौजूद। अफगानिस्तान की जानिब से मुल्ला याकूब बतौर चीफ मुज़ाकरात कार शरीक। अफगानिस्तान से दरअंदाजी के यकनिकाती एजेंडे पर बात हो रही है। मुज़ाकरात की मेज़बानी कतरी इंटेलिजेंस चीफ कर रहे हैं। शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में फोर्सेस की कार्रवाइयाँ। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं खारजी गुल बहादुर ग्रुप को निशाना बनाया। 60 से 70 ख्वारिश मारे गए। सीज फायर के दौरान दहशत गर्दी की कोशिश हुई। फोर्सेस ने कोशिशें नाकाम बनाई। अमरीकी सदर ट्रंप का पाकिस्तान और अफगानिस्तान की कशीदा सूरत हाल पर बयान। कहा पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सीज फायर कराना मेरे लिए बहुत आसान है। मैंने 8 जंगें रुकवाई। किसी अमरीकी सदर ने ऐसा नहीं किया। शहबाज शरीफ ने कहा मैंने पाक भारत जंग रुकवाई, नोबेल इनाम के लिए नहीं, जिंदगियां बचाने के लिए जंगें रुकवा रहा हूं। शिमाली वज़ीरिस्तान में खारजियों का बुज़दिलाना खुदकुश हमला नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 4 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया। खुदकुश हमले में 3 ख़वातीन और 2 बच्चे जाँ बहक हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस का बन्नू में ऑपरेशन फितनाल खारिज का सरगना तारिक खिच्ची और हकीमुल्ला उर्फ टाइगर हलाक। तारिक कच्ची दहशत गर्दों का सहूलतकार था। अफगानिस्तान की किसी भी शरंगेजी का भरपूर जवाब देने को तैयार हैं। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन का 2 टोक मौक़िफ़। कहते हैं अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से आहनी हाथों से निपटेंगे। सियासी बात करना हर जमात का हक है, मगर मुल्क में तकरीब कारी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आलमी सतह पर जो इज्जत और मकाम पाकिस्तान को आज हासिल है, इससे पहले कभी ना था। वफाकी वजीर ने शेखुपुरा में गैस फराहमी के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। अफगानिस्तान 3 मुल्की सीरीज से आउट, जिम्बाब्वे इन।
जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की दावत कबूल कर ली। पाकिस्तान जिम्बाब्वे श्रीलंका के दरमियान T20 सीरीज होगी। 3 मुल्की सीरीज 17 से 29 नवंबर तक रावलपिंडी और लाहौर में खेली जाएगी। गजाफी स्टेडियम 5 मैचों का मेजबान होगा। कौमी वनडे टीम की क़यादत कौन करेगा? जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए कप्तान का इंतखाब न हो सका। पीसीबी के मुताबिक कप्तान के तकर्रुर पर भी गौर जारी है। हेड कोच माइक हेसन ने सिलेक्शन एडवाइजरी कमेटी का मुश्तरका इजलास बुलाने की सिफारिश की है। सिलेक्शन और एडवाइजरी कमेटियों का इजलास 20 अक्टूबर को होगा। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। सदर आसिफ अली जरदारी भी इजलास में शरीक हुए। शुरका ने सानेहा कारसाज समेत तमाम शोहदाए जमहूरियत को खिराजी अकीदत पेश किया। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर शुरका ने क़यादत को तजावीज़ दी। सानेहा कारसाज को 18 बरस बीत गए। 18 अक्टूबर 2007 को वतन वापसी पर बेनज़ीर भुट्टो के काफिले को बम धमाकों से निशाना बनाया गया। सानेह में 180 जियाले शहीद और 500 से जायद जख्मी हुए। यादगार शोहदा पर दुआया तकरीब फातिह खानी के साथ शम्में रोशन की गई। बिलावल भुट्टो समेत पार्टी के अहम रहनुमाओं की यादगार शोहदा पर हाजिरी। बिलावल भुट्टो ने कहा, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत जमहूरियत के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश थी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्कि इस मुल्क के खिलाफ, हमारे वफाक के खिलाफ एक साजिश था। किसी भी जमात के ऊपर, वो सियासी जमात हो या मजहबी जमात हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ये पॉलिसी नहीं रही कि हम सियासी जमातों के ऊपर जो है वो पाबंदी लगाएं। दहशत गर्दी जो है वो किसी तौर पे भी बर्दाश्त, अपनी वो ये सरगर्मियाँ बंद करें। हमारा मुतालबा उनसे यही है कि आप दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ जो है वो बंद करें। अगर वो दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ बंद कर देते हैं तो ना ही जो है वो उनके ख़िलाफ़ कोई जो है वो एक्शन होगा, ना ही उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होगी। धरनों और एहतजाज की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं, राना सनाउल्लाह ने वाज़े कर दिया। कहा, पुरतशद्दुद तरीका छोड़ दिया जाए तो हुकूमत बातचीत के लिए तैयार है। नून लीग किसी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। फैसला हुआ, दहशत गर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गुड और बैड तालिबान की थ्योरी नाकाम हो चुकी, अब वो दहशत गर्द है या नहीं। पंजाब भर में दफा 144 के नफाज में तोसी। एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों, इज्तिमा पर पाबंदी रहेगी। लाउड स्पीकर सिर्फ अजान और जुम्मे के खुतबे के लिए इस्तेमाल होंगे। काबीना कमेटी बराए अमन व अमान ने पाबंदी में तोसी की सिफारिश की। महकमा दाखिला ने 24 अक्टूबर तक के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की अमेरिका में अहम मुलाकातें। आलमी बैंक के सदर अजय बांगा से मुलाकात। आलमी बैंक के साथ शिराकतदारी मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार। सैलाब ज़दगान के लिए आलमी बैंक की बरवक्त इमदाद पर शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद औरंगजेब का हुकूमत की टैरिफ पॉलिसी की तैयारी में आलमी बैंक की तकनीकी मुआवनत पर इजहार तशक्कुर। वजीर खजाना की CEO दुबई इस्लामिक बैंक ग्रुप से मुलाकात। शारजा इस्लामिक बैंक और अजमान बैंक की इंतजामिया से भी मिले। आलमी और मकामी मार्केट में सोने और चांदी की कीमतों में नुमाया कमी। सोना एक ही दिन में 10,600 रुपये सस्ता। सोने की नई कीमत 4,46,300 रुपये फी तोला हो गई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जजेस के खिलाफ शिकायत पर मजीद कार्रवाई का फैसला। कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम की मंजूरी। जजेस के खिलाफ 74 में से 70 शिकायत मुस्तरद, 3 पर मजीद कार्रवाई मंजूर, 1 पर कार्रवाई मुअख्खर कर दी गई। जजेस अब मीडिया पर बातचीत भी नहीं कर सकेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद टी चौक फ्लाई ओवर मंसूबे का दौरा। प्रोजेक्ट के तरक्याती कामों की पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। मोहसिन नकवी ने मेगा प्रोजेक्ट पर तामीराती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। प्रोजेक्ट की पाइल्स कैप और गार्ड्स कास्टिंग का 100% काम मुकम्मल। मंसूबे की हिफाजती दीवारों का 60% काम मुकम्मल कर लिया गया। वजारत दाखिला में बुलेट प्रूफ गाड़ियां खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के हवाले करने की तकरीर। मोहसिन नकवी ने गाड़ियों की चाबियां IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद के हवाले की। वज़ीर दाखिला ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रही है।
पुलिस समेत तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को जरूरी वसाइल की फराहमी तरजीह है। इसराइल ने अमन मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। काबिज इसराइली फौज की जंगबंदी मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जियां जारी। अरब मीडिया के मुताबिक गजा में तैयारे से गाड़ी पर हमले में एक ही खानदान के 11 अफराद शहीद हो गए। शहीद होने वालों में 7 बच्चे और 3 खवातीन शामिल। हमास की जंगबंदी के बावजूद इसराइली फौज की जारियत की शदीद अल्फाज में मुजम्मत। हमास ने एक और मगवी की लाश इसराइल के हवाले कर दी। चीन में फौजी जर्नैलों पर करप्शन के इल्जामात। कम्युनिस्ट पार्टी ने 9 आला जर्नैलों को पार्टी और फौज से निकाल दिया। चीनी वजारत दिफा ने बयान जारी कर दिया। ज्यादातर सीनियर जनरल्स और पार्टी की फैसला साज मरकजी कमेटी के अरकान पर संगीन मालियाती जराइम का शुबा है। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका टेस्ट सीरीज, दोनों टीमों की पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस। सीरीज का दूसरा मैच पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 20 अक्टूबर से शुरू होगा। जनूबी अफ्रीका से ज़राफ़ों का नया जोड़ा लाहौर पहुंच गया। 8 साल बाद ज़राफ़ों की आमद से चिड़ियाघर की रौनकें दोबाला। 2022 में नर ज़राफ़े की मौत के बाद चिड़ियाघर वीरान था। इम्पोर्ट पर पाबंदी के खात्मे के बाद कॉमेडी और एडवेंचर से भरपूर एनिमेटेड फिल्म द ट्विस्ट का ट्रेलर जारी। हॉलीवुड फिल्म 17 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर होगी।